آج کی سب سے بڑی اور حیران کن بریکنگ نیوز سے میں یہاں بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس دیکھ رہی ہوں، جس میں رشین ٹی وی، CNN، بلومبرگ، الجزیرہ سب اس پر بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر پس پردہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور یہ کوئی مہینوں بعد کی بات نہیں ہو رہی۔ مطلب ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جمعرات یا ہفتے کے دن اسلام آباد، وینا یا پھر استنبول میں متوقع ہے۔ اتنی اجلت کیوں ہے بھائی؟ اور ان مذاکرات کی ٹائمنگ کو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے متوقع دورہ چائنا سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اصل میں اس اجلت کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مجبوری ہے۔ ٹرمپ کے ممکنہ دورہ چین کا مقصد معاشی اور تجارتی معاملات پر ایک بڑی ڈیل کرنا ہے، لیکن چین کے لیے مشرق وسطیٰ کا امن اس کے اپنے تجارتی روٹس، خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اچھا، تو یعنی چین نہیں چاہتا کہ وہاں گڑبڑ ہو؟ بالکل، چین ہرگز نہیں چاہتا، اور امریکہ اس وقت آبنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کے دیگر تنازعات میں اس طرح الجھ چکا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ٹرمپ یا امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ چین کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو مشرق وسطیٰ میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ان کے گلے کا توق بنی ہو۔ سمجھ رہی ہوں۔ وہ ایک محاذ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے محاذ یعنی چین پر اپنی پوری توجہ اور دباؤ مرکوز کر سکیں۔ لیکن یہ محاذ ٹھنڈا کیسے ہوگا جبکہ مطالبات اتنے متضاد ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ رپورٹس کے مطابق ایران نے ایک پیشکش کی ہے کہ وہ اپنے یورینیم کی افزودگی کو اگلے 5 سال کے لیے مکمل طور پر معطل کر دے گا، یہاں تک کہ سویلین مقاصد کے لیے بھی۔ یہ ایک بہت بڑی رعایت لگتی ہے۔ جی، بظاہر تو بہت بڑی رعایت ہے، لیکن دوسری طرف امریکی نائب صدر کے امیدوار JD وینس کا مطالبہ ہے کہ 5 سال کچھ بھی نہیں، یہ پابندی 20 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان تو کوئی درمیانی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اور یہی وہ مقام آتا ہے جہاں اس پوری عالمی بساط پر ایک تیسرے کھلاڑی کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ ہے روس۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایک ایسی پیشکش کی ہے جو پورے خطے کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ روس؟ جی ہاں، روس۔ اس نے کہا ہے کہ ایران اپنا تمام افزودہ یورینیم جو اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خدشہ بنا ہوا ہے وہ روس کے پاس بطور امانت رکھوا دے۔ اسے آپ ایک نیوکلیئر بینک یا ایٹمی بینک کا تصور کہہ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ روس کے پاس یورینیم رکھوانے سے یہ 5 اور 20 سال والا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کے پاس موجود ایک خطرناک ہتھیار سے ڈر لگتا ہے تو آپ وہ ہتھیار محلے کے ایک ایسے چودھری کے پاس رکھوا دیتے ہیں جس پر آپ کو اعتبار ہے اور جس سے پڑوسی بھی براہ راست نہیں الجھنا چاہتا۔ ہاں، زبردست مثال ہے۔ تو مطلب روس وہ چودھری بن رہا ہے؟ جی بالکل۔ اگر روس یہ ایٹمی اثاثے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو امریکہ کا یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ ایران راتوں رات کوئی ایٹمی تجربہ کر لے گا، لیکن اصل کھیل روس کا ہے۔ اس ایک قدم سے روس مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور اور ناگزیر ثالث بن جائے گا۔ اوہو، یعنی سارا لیوریج روس کے پاس چلا جائے گا؟ بالکل۔ امریکہ جو دباؤ براہ راست ایران پر ڈال سکتا تھا، اب وہ سارا لیوریج یا کنٹرول روس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ چین اور روس پہلے ہی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ یہ پیشکش دراصل امریکی بالادستی کو ایک خاموش لیکن بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر پیشکش ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہم سفارتکاری اور ان ایٹمی بینکوں کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف JD وینس باقاعدہ فاکس نیوز پر بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ایران باز نہ آیا تو امریکہ ایرانی بندرگاہوں کو مکمل طور پر بند کر دے گا۔ ان کا معاشی گھیراؤ کر لیا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں نا وہ۔ جی بالکل، لیکن میں BBC کی یہ رپورٹ دیکھتی ہوں جس کے مطابق اسی جنگی ماحول میں ایران نے صرف مارچ کے مہینے میں 6 کروڑ بیرل خام تیل برآمد کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ مطلب کوئی مجھے یہ بتائے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت آپ کی بندرگاہیں بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہے اور آپ تیل بیچنے کے عالمی ریکارڈ توڑ رہے ہیں، یہ عملی طور پر ممکن کیسے ہے؟ یہ جو تضاد ہے نا، یہ موجودہ عالمی معاشی نظام کا سب سے بڑا سچ ہے۔ سیاسی بیانات اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم بندرگاہیں بند کرنے کی دھمکی سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سمندر میں دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، لیکن حقیقت میں شیڈو فلیٹ یعنی خفیہ بحری جہازوں کا ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ شیڈو فلیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ جہاز سمندر کے بیچوں بیچ اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر کے ایک دوسرے کو تیل منتقل کرتے ہیں۔ کوئی ریڈار ان کو ٹریک نہیں کر پاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالمی منڈی کو توانائی کی ضرورت ہے۔ جب خریدار موجود ہو اور اس سے سستا تیل مل رہا ہو تو پابندیاں پانی کی طرح اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں۔ مطلب منافع کے آگے ساری پابندیاں فیل ہیں؟ بالکل۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عالمی معیشت کی پیاس واشنگٹن کی سیاسی دھمکیوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی تیل کی ترسیل نے دنیا کو ایک خطرناک عالمی ٹریفک جیم میں پھنسا دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر کا راستہ مسلسل نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ جی، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور دیگر ممالک کی تیل کی ترسیل شدید خطرے میں ہے۔ بالکل، اور اس کے جواب میں سعودی عرب نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر محفوظ بنائیں اور اسے کھلا رکھیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سڑک بلاک ہوئی ہے تو ساری ٹریفک دوسری سڑک پر آ گئی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ٹریفک جام سے زیادہ یہ ایک عالمی یرغمالی کی صورتحال یعنی ہاسٹیج سچویشن ہے۔ حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنا کر دراصل پورے عالمی سپلائی چین کی شہرک پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو اس سے سعودی عرب کو کتنا بڑا خطرہ ہے؟ سعودی عرب کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بھائی، کیونکہ اگر بحیرہ احمر بند ہے اور دوسری طرف آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے یا وہاں کشیدگی ہے تو سعودی تیل دنیا تک کیسے پہنچے گا؟ اسی لیے وہ امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہر صورت آبنائے ہرمز کی حفاظت کی گارنٹی دے۔ صحیح۔ اور جب عالمی سطح پر تیل کے یہ سمندری راستے اس طرح یرغمال بنتے ہیں تو اس کا سیدھا اور تاریک اثر ہمارے مقامی حالات پر پڑتا ہے۔ یہیں سے ہم اپنے اگلے پہلو کی طرف آتے ہیں جو ان عالمی خبروں کا سب سے تلخ مقامی نتیجہ ہے۔ اور وہ مقامی نتیجہ ہم سب روز بھگت رہے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے اور دیہاتوں میں 6 گھنٹے کی طویل اور اعصاب شکن لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ غیر سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ملک میں تیل کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے بجلی گھر بند پڑے ہیں۔
लेकिन सरकारी वज़रा डंके की चोट पर टीवी स्क्रीन्स पर दावा कर रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, मुल्क में 28 दिन का तेल का जखीरा मौजूद है। मेरा सवाल यह है कि अगर तेल मौजूद है तो अवाम अंधेरे में क्यों है? देखें, ये हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ का वही तज़ाद है जो हमने अभी आलमी सतह पर देखा। अगर वाकई 28 दिन का तेल मौजूद है तो मसला सप्लाई का नहीं बल्कि मालियाती ढांचे और बदइंतज़ामी का है। यानी पैसे नहीं है उनके पास। असल मसला यह है कि हुकूमत के पास वो तेल खरीदकर बिजली घरों को चलाने के लिए दरकार सरमाया मौजूद ही नहीं है। गर्दिशी कर्जा इस हद तक बढ़ चुका है कि पूरा निज़ाम मफलूज हो रहा है। और इस सब में जो सबसे भयानक किरदार है ना, वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है। ओह बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम 1900 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। अवाम की जेब से 1900 अरब रुपए उन बिजली घरों को दिए जा रहे हैं जो शायद चल ही नहीं रहे। एक आम सुनने वाले के लिए ये कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला आखिर है क्या? जरा आसान करके बताएं। इसको एक बहुत सादा मिसाल से समझा जा सकता है। फर्ज करें आपने गाड़ी पूरे साल के लिए किराए पर ली है और मुआहदा ये किया है कि आप रोजाना का किराया देंगे। अब चाहे आप उस गाड़ी को सारा दिन चलाएं या वो पूरा महीना आपके गैराज में खड़ी रहे, आपको किराया हर सूरत अदा करना है। यानी इस्तेमाल करूं या ना करूं पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान ने निजी बिजली घरों के साथ बिल्कुल ऐसे ही मुआहदे किए थे। बिजली घर लग गए, लेकिन हुकूमत के पास ना तो उन्हें चलाने के लिए सस्ता ईंधन है और ना ही पैदा होने वाली बिजली को आवाम तक पहुंचाने का मुनासिब तरसीली निजाम। तो वो बिजली घर बस बंद पड़े रहते हैं। बंद पड़े रहते हैं, लेकिन मुआहदे के तहत हुकूमत इन्हें वो किराया यानी कैपेसिटी पेमेंट अदा करने की पाबंद है। और ये पैसा कहीं आसमान से नहीं आता, ये आवाम के बिजली के बिलों में शामिल करके उनसे निकाला जाता है। ये तो सरासर जुल्म है। मतलब आवाम उस बिजली के पैसे अदा कर रहे हैं जो उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, और ऊपर से वो 6 घंटे अंधेरे में भी बैठे। और इसी दौरान हमें हुकूमत की तरफ से ये बयानिए सुनने को मिलते हैं कि मुल्क तो ऊंची उड़ान भर रहा है, हम तो तेज रफ्तार तरक्की की पटरी पर चढ़ चुके हैं। क्या ये माशी उड़ान सिर्फ मुल्क की इशराफिया और उन पावर प्लांट्स के मालिकान के लिए है? ये वो तल्ख हकीकत है जिसे हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। आवाम सिर्फ अंधेरे और भारी बिलों के बोझ तले दबे रहने के लिए छोड़ दिए गए हैं। और जब मुकामी तौर पर मईशत इस तरह खोखली हो चुकी हो तो हुकूमतें बैरूनी दुनिया की तरफ देखती हैं कि शायद कोई लाइफलाइन मिल जाए। लेकिन अब वो लाइफलाइंस भी तो बदल रही है ना? जी बिल्कुल बदल रही हैं। इसी लाइफलाइन का तस्करा उन ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और वीडियो में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले तक बड़ा शोर था कि सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर का एक बड़ा रिलीफ पैकेज मिलने वाला है। लेकिन अब हकीकत ये सामने आई है कि ये रकम 5 अरब डॉलर के बजाय सिर्फ 3 अरब डॉलर बतौर डिपॉजिट दी जा रही है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये रकम किसी नए तरक्याती मंसूबे के लिए नहीं मिल रही। जी हाँ, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज उतार सके। ये तो एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालने वाली बात हो गई ना। इसको माशियात की जुबान में आप एक बैंडेड या आर्जी पट्टी कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया हो। आपका मजमूई कर्जा तो कम नहीं हुआ, बस आपने ये तब्दील कर लिया है कि अब आपने पैसे देने किसको हैं। मतलब हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जी, ये 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट इस बात का वाज़िया इशारा है कि अब दोस्त ममालिक जिन्हें हम हमेशा अपना मालियाती बैकअप समझते थे, वो भी अपनी पॉलिसियां सख्त कर चुके हैं। वो अब ब्लैंक चेक नहीं दे रहे, बल्कि ये सब सख्त मौशी शराइत और IMF के दबाव का नतीजा है। और इसी हसास सूरत हाल के दौरान एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। ड्रॉप साइट नामी एक अमरीकी सहाफ़ती प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उनके पास पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक इंतहाई हसास दिफाई मुआहदे का मसवदा लीक होकर आ गया है। ये लीक होना कितना बड़ा मसला है? इस लीक का मतलब ये है कि खित्ते में ताल्लुकात अब सिर्फ बरादराना नहीं रहे। दिफाई मुआहदों का यूं लीक होना ये जाहिर करता है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें, जिसमें अमेरिका शामिल है, वो इन दो तरफा ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये इस बात की निशानदेही करता है कि मुआशी मजबूरियों ने रियासतों को सिफारती और दिफाई महाज पर कितना हसास और कमजोर कर दिया है। जब आप मुआशी तौर पर दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करते हैं तो आपकी दिफाई और स्ट्रेटेजिक राजदारी भी दाव पर लग जाती है। वाकई तो एक तरफ हमारे पास ये संगीन माशी बहरान है, गर्दिशी कर्जे हैं, 1900 अरब रुपए का बोझ है और दिफाई राजों के इफ्शा होने का खतरा है। लेकिन जब हम अपना टीवी ऑन करते हैं तो क्या हमें इन मसाइल पर बात होती नजर आती है? बिल्कुल नहीं, मीडिया की तो अलग ही दुनिया है। जी बिल्कुल, मीडिया हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हाल ही में भारत की मशहूर गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल की खबर आई। जियो टीवी ने उस पर एक खुसूसी ट्रांसमिशन चलाई, उनके गाने नशर किए, जिस पर पेमरा ने फौरन हरकत में आते हुए इंडियन कंटेंट दिखाने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। और इस नोटिस के जवाब में जियो टीवी का मौकफ उस हवाले से बहुत दिलचस्प था कि उन्होंने एक इंतहाई आला इखलाकी मौकफ, जिसे हम हाई मॉरल ग्राउंड कहते हैं, वो इख्तियार किया। क्या मौकफ था उनका? उनका इस्तेदलाल था कि फनकार सरहदों के कैदी नहीं होते, फन साझा होता है और आर्ट को सियासत से बालातर होना चाहिए। बज़ाहिर एक आम आदमी को ये बात आज़ादी इजहार और फन की तकरीम के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त और मंतकी लगेगी। लगती तो है, लेकिन इन ज़राए और रिपोर्टर्स ने इस पर बहुत सख्त सवालात उठाए हैं। वो सवाल ये कर रहे हैं कि ये आला इखलाकी मेयार या आज़ादी इजहार का दर्ज इस वक्त कहाँ गायब हो जाता है जब मुल्क के अंदर सियासी सेंसरशिप की बात आती है। बिल्कुल वजह सवाल है। जब साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर दिखाने या उनका नाम तक लेने पर गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई थी, तब फन और इजहार की आज़ादी कहाँ थी? या जब बुशरा बीबी की इद्दत के केस जैसे इंतहाई निजी और हसास नोयत के मामलात पर मेन स्ट्रीम टीवी स्क्रीन पर घंटों बहस की जा रही थी, तब किसी ने ये आला इखलाकी ग्राउंड क्यों नहीं लिया कि हम इस किस्म की गैर इखलाकी सहाफत का हिस्सा नहीं बनेंगे? यही वो रवैया है ना जिसे तज्जियाकार इखलाकियात को बतौर हथियार इस्तेमाल करना यानी वेपनाइजेशन ऑफ मोरालिटी कहते हैं। ये एक तरफा ट्रैफिक है। पेमरा की कार्रवाइयों
को देखें तो वहाँ भी एक सेलेक्टिव अप्रोच है। कुछ मामलात पर फौरी नोटिस आ जाता है और कुछ संगीन खिलाफवर्जियों पर मुकम्मल खामोशी छाई रहती है। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है, और मीडिया हाउसेस का भी यही हाल है। जी, मीडिया हाउसेस की हालत ये है कि जब उन्हें कोई बयानिया सूट करता है तो वो रातों रात आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलमबरदार बन जाते हैं, लेकिन जहाँ रियासती दबाव आ जाए या उनके अपने मफादात पर ज़र पड़ रही हो तो वो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। मतलब ये सब एक ड्रामा है? ये मुनाफिकत दरअसल अवाम को उन असल मसाइल जैसे कि कैपेसिटी पेमेंट्स या मौशी तबाही से तवज्जो हटाने का एक टूल बन चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये बयानिए का खेल या दोहरा म्यार सिर्फ हमारे यहाँ चल रहा है। आलमी सियासत में तो ये इससे भी बड़ा ड्रामा बन चुका है। जरा इन रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप के इस वाक्य को देखें। ट्रंप की एक मसनूई जहानत यानी AI से बनी हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसमें उन्हें बाकायदा एक मसीहा या हजरत ईसा के रूप में दिखाया गया। जी, और इस पर तो बहुत हंगामा हुआ था। जाहिर है उस पर मसीही मजहबी हलकों में शदीद तनकीद और गुस्सा सामने आया। जब तनकीद बढ़ी तो ट्रंप का दिफा क्या था? वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि भाई मेरा मकसद खुद को मसीहा साबित करना नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर या हीलर के रूप में नजर आना चाह रहा था जो दुनिया के जख्मों पर मरहम रख सके। ये अपने आप को एहतिसाब से बचाने का क्लासिक तरीका है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप की जानिब से इस मामले पर नाराजगी का इजहार किया गया तो ट्रंप ने उनसे माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर इटालवी वजीर आजम, जो कि हैरानकुन तौर पर दाएं बाजू की रहनुमा हैं और ट्रंप की नजरियाती इत्तेहादी समझी जाती हैं, उन्होंने ट्रंप पर शदीद तनकीद की। लेकिन इस पूरे वाक़ये में जो सबसे बड़ा जोग्राफाई और सियासी तजाद सामने आया, जिसे सुनकर कोई भी उलझ जाएगा, वो ये था कि ईरान के सदर और स्पीकर ने खुलेआम पोप के मौक़िफ़ की तारीफ की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुझे तो ये आलमी सियासत का एक हैरानकुन ब्लाइंड स्पॉट लगता है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बादल मंडरा रहे हैं, मिसाइल चलने की धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ अखलाकी और मजहबी बयानात की बुनियाद पर एक अजीब सी आलमी सफबंदी हो रही है। जी, जहां ईरान पोप की हिमायत करके दरअसल ट्रंप और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पर अखलाकी बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं इन आलमी और मकामी शख्सियात के रवैयों में ना एक कमाल की मुमासलत देख रही हूँ। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, जो तनकीद से बचने के लिए अल्फाज के हेरफेर से खुद को डॉक्टर साबित करने लगते हैं, या हमारा मकामी मीडिया जो एक दिन फन की सरहदों की बात करता है और दूसरे दिन सेंसरशिप पर खामोश रहता है, ये सब दरअसल अवामी दबाव और एहतसाब से बचने के हरबे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है आपका। अवामी शख्सियात जब अपने ही किसी मुतनाज़ा अमल या बयान की वजह से मुश्किल में फंसती हैं तो वो बरह रास्त गलती मानने के बजाय किसी न किसी बयानिए की आड़ लेती हैं। वो कोई ऐसा कार्ड खेलती हैं जिससे बहस का असल मौजू ही तब्दील हो जाए। और इस कार्ड खेलने की सबसे ताज़ा मिसाल भी इन रिपोर्ट्स में नुमाया है। एक मारूफ मकामी मीडिया पर्सन गुरीदा फारूकी की एक अवामी मकाम पर ली गई तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में उन्होंने एक इंतहाई गैर रस्मी लिबास, जो कि पायजामे जैसा था, पहना हुआ था। जी, वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। जब सोशल मीडिया पर पब्लिक फोरम पर उनके इस लिबास के इंतखाब पर तनकीद की गई तो उन्होंने फौरन अपने दिफा में औरत कार्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि ये तस्वीर एडिटेड है और किसी प्राइवेट एंगल से ली गई है ताकि एक औरत की तजलील की जा सके। अब रिपोर्ट्स में मौजूद ज़राए इस वाक़े का जिस जाविये से तज्जिया कर रहे हैं ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तनकीद करने वालों का मौक़िफ़ ये है कि जब कोई अवामी शख्सियत एक पब्लिक मकाम पर मौजूद होती है और वहाँ उसकी तस्वीर सामने आती हैं तो उसमें प्राइवेट एंगल की दलील मंतिकी तौर पर लागू नहीं होती। बिल्कुल, पब्लिक प्लेस पर प्राइवेट एंगल कैसा? नाक़दीन का कहना है कि यहाँ मसला आज़ादी निस्मा का नहीं है, बल्कि एक अवामी शख्स पर होने वाली आम तनकीद को बर्दाश्त करने का है। सही, और ज़राए का सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि जब अवामी मुकामात पर एक आम शहरी आज़ादी इजहार के तहत किसी के लिबास या रवैये पर अपनी राय देता है तो वहाँ औरत कार्ड का इस्तेमाल दरअसल उन असल ख़वातीन के मसाइल को कमज़ोर करता है जो वाकई मुआशरे में संगीन हरासमेंट और जुल्म का शिकार होती हैं। बिल्कुल, ये असल मुद्दे से ध्यान हटाने वाली बात है। ये बिल्कुल वही रवैया है जो हमने ट्रंप के केस में देखा कि अपनी किसी कमजोरी या मुतनाज़ा अमल का दिफा करने के लिए एक बुलंद-दुबांग, हसास और जज्बाती बयानिया खड़ा कर देना ताकि असल बात पर बहस ही ना हो सके। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू और इन तमाम बिखरी हुई रिपोर्ट्स को एक जगह समेटें तो हमें इस आलमी और मकामी बिसात का एक वाज़ा पैटर्न नजर आता है। आज की दुनिया में असल जंग सिर्फ वसाइल, तेल या जोग्राफियाई सरहदों की नहीं रही। ये दरअसल बयानिए या नैरेटिव पर कंट्रोल की जंग है। जी, ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि किस तरह आलमी समुद्री रास्तों जैसे आबनाए हुर्मुज़ और बहीरा अहमर की सियासत सीधा हमारे घरों की बिजली की तारों और लोड शेडिंग के दौरानिए पर असरअंदाज होती है। और किस तरह बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद मौशी मफादात अपना रास्ता निकाल लेते हैं और शैडो फ्लीट्स के जरिए तेल बिकता रहता है। बिल्कुल, और किस तरह वसाइल पर कंट्रोल की इस संगीन जंग के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया और अवामी शख्सियात हमें सतही तनाज़ुआत, अखलाकी ड्रामों और बयानिए की जंग में उलझाए रखती हैं ताकि हम उन 1900 अरब रुपयों के बारे में सवाल न कर सकें जो हमारी जेबों से निकाले जा रहे हैं। और यही वो मुकाम है जहां इन रिपोर्ट्स को समझने वाले एक आम इंसान को यह फैसला करना है कि उसने खबरों के सतही शोर का हिस्सा बनना है या इन खबरों के पीछे चलने वाले असल मौशी और स्ट्रेटेजिक मुहर्रिकात को पहचानना है। जब तक हम इन बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने वाले वाक़यात के दरमियान मौजूद उस रब्त को नहीं समझेंगे, हम इस बिसात पर सिर्फ प्यादे ही रहेंगे। आज के इस तेज रफ्तार और तफसीली तज्जिए का वक्त यहाँ खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले इस सब को सुनकर जहन में जो एक खत्मी और चुपता हुआ सवाल उभरता है वो हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अगर बड़ी आलमी ताकतें अब अपने एटमी मामलात की निगरानी रूस जैसे मुमालिक को आउटसोर्स कर रही हैं
हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क की धमकियां अब ईरान का तेल बिकने से नहीं रोक सकती और दूसरी तरफ रिवायती दोस्त और इत्तेहादी जैसे सऊदी अरब अपनी मुआशी मदद को भी सख्त शराइत के साथ महदूद कर रहे हैं और महज एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से उतारने की सहूलत दे रहे हैं, तो क्या तीसरी दुनिया के मुमालिक को अब ये खुली हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी रेस्क्यू या किसी बैरूनी मसीहा का तस्वुर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है? ये एक बहुत अहम सवाल है। जी, क्या वो इस नई आलमी बिसात पर मुआशी और स्ट्रेटेजिक तौर पर अब बिल्कुल तन्हा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में गहराई से सोचने की जरूरत है। सोचते रहिए, हम मिलेंगे एक नए तज्जिए के साथ। खुदा हाफिज।